Good morning, class 10th. Today I am moving to the last segment of my chapter. In this chapter we have already covered that economic activities are classified on the basis of the nature of their work. We group them accordingly the type, the kind of the work performed by different people. They may be dependent upon natural products. They may be into the process of manufacturing something. And sometimes besides the production of goods, they are involved in providing services. We name them as primary sector, secondary sector and tertiary sector. The basis of classification was the nature of work. In yesterday's class we have done that sectors are classified also on the basis of kind of employment or the conditions of employment during work. It may be organized where rules and regulations are followed, where the places have themselves registered with the government. They are giving proper benefits, proper remunerations, proper taking care of their employees. Whereas in unorganized sector, run on the whims of employer. Today we are doing a topic which you are studying since class 8th. That is, the sectors of Indian economy are also divided on the basis of terms of ownership. Yes, आप इस टॉपिक को रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन में ज्योग्राफी में भी कर चुके हैं. That resources are classified on the basis of ownership or on the basis of management. Here also we say that sectors may be classified under public sector or private sector. Defining public sector, we say that the sector, the factories, the manufacturing units, the working place, when they are owned by the government, they are under the management and control of government. Generally, here the government owns का मतलब मालिकाना हक अपने हाथ में रखती है. सारे assets, government is responsible for the delivery of goods and services, and इसमें बहुत सारी services ऐसी होती हैं which basically are meant for the welfare of people. You can say here the government when provide us the services like railways, the post telegraphs or the services related to communication, the government is not working for its own. It is working to provide benefits and fulfilling the aspirations of the citizens living in a particular country. Got it? यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है. So we answer it that government may gets money or it raises money. Gets money तो नहीं आएगा, it raises money. Fine, पैसा तो हर चीज के लिए चाहिए. That is with the help of taxes. हमारे लिए जो दूसरा सेक्टर आता है that is private sector, in which we can say is owned by individual or the group of individuals. इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ सकते हैं. आपका सबसे पहले आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करें तो सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील प्लांट टिस्को का हम नाम लेते हैं. हम अगर आज के टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो हम रिलायंस या जियो का नाम लेते हैं. बेसिकली वेयर द इंडस्ट्रीज आर रनिंग विद द पर्पस फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. दे आर नॉट कंसर्न कि लोगों को इसका क्या बेनिफिट है, लार्ज स्केल पे इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसकी लोगों को कितनी जरूरत है. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके वी कैन अर्न प्रॉफिट, देन दे सेट अप प्राइवेट एंटरप्राइजेस. गॉट इट? अब इसके साथ साथ हमारे लिए आता है अगर ये सब चल रहा है, देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जो बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनता है. या why the government is responsible or why the government has taken up the responsibility of the public sector. इसके कुछ prominent reasons है, जिसमें से सबसे पहले ये आता है हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव है that it wants to earn profit और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की होती हैं, गवर्नमेंट उसे रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर हमें प्रोवाइड करती है। वो कोशिश करती है कि दामों को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक एसेंशियल फूड, बेसिक सर्विसेज लोगों को इस तरीके से प्रोवाइड की जाएं कि सब लोग उन्हें अफोर्ड कर सके। नंबर 2, हमें जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान आज नहीं चाहिए, इसके साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें रोड्स चाहिए, हमें ब्रिजेस चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में इतने लार्ज स्केल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क फॉर एनी वन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर को अगर प्रोड्यूस करना है, हमारे देश में आज भी प्राइमरी सेक्टर ऑलमोस्ट 55% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस जैसे कि हमने कल किया था, या बफर स्टॉक्स को गोडाउन्स में मेंटेन करना, या टाइमली इश्यू प्राइसेस को रिवाइज करना, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को सेटअप करना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बाहर है। इन काम को करने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, किसी भी देश में ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट शुड प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स विद द बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, और इट कैन प्रोवाइड cheap or easy affordable credit या loan to its farmers or small scale industries or generate self-employment programs. In class 9th you have gone through many programs जैसे कि PMRY था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना था, REGP था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, SGSY था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, आपने सब पढ़ा था। तो यहाँ पर स्पॉन्सर सबको कौन कर रहा था? गवर्नमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही गवर्नमेंट की है कि वो सब ये चीजें प्रोवाइड करती है। सिमिलरली किसी भी देश की डेवलपमेंट वर्ल्ड लेवल पर जब मापी जाती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या हमारे देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको कंट्रोल करना, क्या हमारे देश का लिटरेसी रेट है, इसको मेंटेन करना, कितनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स या कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी हमारे देश में इनफ्लो हो रही है, उसको मेंटेन करना, या कोई भी इराडिक्शन करना डिजीज का। इस समय की प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस है। इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी रतन टाटा और एनी बिरलास और एनी अंबानी। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड put the country on the path of development. ऐसे में जो सारे सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें मैनेज कर रही होती है और गवर्नमेंट उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है अभी आज का। आप एक बार बुक की रीडिंग कर लीजिएगा। रेस्ट आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप। ओके, थैंक्स गाइज।